all. Hope you all are safe and doing well. I am Ms. Megharima Datta, Assistant Professor in Department of Civil Engineering, Medicaps University, Indore. In today's pandemic situation, where everyone is struggling in many ways, construction industry is one of them. Therefore, Medicaps University presents a webinar on wonders of Vastu Shastra. But before we move on, let me introduce you to Medicaps University. In year 2000, we have started with Medicaps Institute of Technology and Management with 240 seats in various engineering and management courses. In year 2009, we have come up with Medicaps Institute of Science and Technology, where we have started few new courses in engineering and we became Medicaps Group of Institution. And finally, in year 2015, we got the approval from UGC to be a self-financed university and admission for same started in 2016. Since then, we have included many courses other than engineering like management, agriculture, pharmacy, design, commerce, science, arts, etc. Today, we have a strong backing of all the parents and the student since we have created our own brand in the Central India. Till date, more than 12,000 students have been passed out from Medicaps and are working globally, and more than 7,000 students currently studying in various programs. Since the university started, we are very lucky to have Professor Dr. Sunil Kumar Somani sir as our Vice Chancellor of this university. Now, let me give you the introduction of today's speaker, Mr. Ajit Kumar Jain sir. He is working as Assistant Professor in Medicaps University, Indore. He has been awarded as Vastu Nidhi by International Vastu Association and also Chartered Engineer by Institution of Engineer India. He has very long 21 years of experience as a Vastu consultant. He has designed buildings and temples as per Vastu Shastra norms. And also he did various remedial works in building, factories and temples. Many articles have been published in various magazines and newspapers. It is very, very renownable right now. He has also submitted various research papers regarding Vastu Shastra in national conferences. He also did many work which has brought visible and successful change in the construction field. I would like to invite our speaker for today's webinar, Mr. Ajit Jain sir. Ajit Jain sir, you can start the webinar right now. Thank you. Ajit Jain sir. जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं अजित कुमार जैन। देखिए, ये वास्तु में जब शुरुआत हुआ इसका, तब उसके पहले आदमी या मनुष्य जंगल में रहता था और नेचर के बहुत करीब था। तो नेचर में की जो एनर्जीज हैं उसको अपने आप मिलती रहती थी। लेकिन जब बिल्डिंग बनाना
शुरू किया, तो मनुष्य शेयर कर लूं फिर उसके बाद। हेलो। Yes, sir. You're audible. हाँ, Please आवाज आ start. रही है? Yes, sir. आवाज Yes, sir. ठीक है जी? Yes, sir. Clear. स्लाइड भी विजिबल है? Yes, sir. Please start. जी। ये जब आदमी ने, मनुष्य ने मकान बना के रहना शुरू किया, तब एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि वो प्रकृति से कट गया। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच में हमने अपने और प्रकृति के बीच में एक बिल्डिंग बनाकर एक दीवार खड़ी कर ली बीच में। अब प्रकृति में जो भी एनर्जीज का फ्लो होता है, वो एनर्जी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब हमें वैसी एनर्जी नहीं मिल रही है जैसी एनर्जी प्रकृति में रहने वालों को मिलती है। तो अब उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, अंदर रहने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट उसका होने वाला है, ये इसका जो साइंस है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो वास्तुशास्त्र है। तो यहाँ पर वास्तु के कंसेप्ट अभी हम जो देखते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत से लोग वास्तु की बात करते हैं और उनमें कई बार अलग अलग एक दूसरे के अपोजिट बातें भी मिलती हैं। तो मैं आज आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, जो सिद्धांत शेयर कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ वास्तु के, वो सारे कंसेप्ट मेरे टेस्टेड कंसेप्ट हैं। इनका मैंने रिजल्ट देखा हुआ है और मैंने इनको टेस्ट किया हुआ है। उन्हीं केवल की हम बात अभी इनमें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि वास्तुशास्त्र में एक ये वास्तु पुरुष की कल्पना की गई है। इसके उत्पत्ति की एक कहानी है। अब वो कहानी को अभी हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये है हमारे काम का कि ये वास्तु पुरुष है जो किसी भी लैंड में, किसी भी वास्तु में इसकी उपस्थिति मानी जाती है। और इसके ऊपर ये जो इसके अलग अलग बॉडी के पार्ट दिख रहे हैं, जो अलग अलग अंग हैं इसके, उन पर अलग अलग देवताओं की कल्पना की गई है। तो ये जो डिवाइड किया है 81 पार्ट्स में ये पूरा लैंड को, तो उन 81 पार्ट्स में 81 देवताओं की उपस्थिति मानी गई है और उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट के की प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो इफेक्ट हैं, जो उसमें रहने वाला है, तो उस स्थान पर उसके अकॉर्डिंग होगा। ये वास्तु पुरुष है, ये नॉर्थ ईस्ट में इसका सिर माना गया है और साउथ वेस्ट में इसका पैर है, ऐसा कल्पना की गई है। इसमें एक चीज और है कि ये ईयरली रोटेट भी होता है।
दोनों तरह का एनालिसिस होता है। किसी भी वास्तु का जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको कांस्टेंट पोजीशन, ये एक स्थिर पोजीशन ये भी मानते हैं कि ये इस ढंग से यहाँ पर है, और साथ में ये 3-3 महीने में रोटेट भी होता है। 3 महीने बाद इसका सिर आ जाएगा साउथ ईस्ट में, फिर उसके बाद 3 महीने साउथ वेस्ट में। तो ये जो रोटेशन है ये हमें काम में आता है जब हम मुहूर्त निकालते हैं। जब किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तब उसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके किसी भी नाजुक अंग पर, ठीक है, जैसे सिर है, पेट है, हार्ट है, इस ढंग के कुछ नाजुक अंग इसमें आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें हमें गड्ढा उस समय नहीं करना है। उस समय यहाँ पर हमें बचा करके चलना होता है इसका। तो ये वास्तु पुरुष इस ढंग से 2 तरह से इसका एनालिसिस होता है, एक स्थिर पोजीशन में भी और एक इसका रोटेशन जब होता है तब भी हम इसको करते हैं। इसकी फिर डिटेल और अब बात जो है हम आगे करेंगे। अभी ये हम डायरेक्शन को समझ लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हैं, इनको हम जानते हैं, ये 4 दिशाएं हैं। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उसको, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट यानी आग्नेय, साउथ वेस्ट के बीच में नैऋत्य और नॉर्थ वेस्ट में वायव्य दिशा। ये इस ढंग से 8 दिशाएं हैं। तो ये 8 दिशाओं में हमने प्लॉट को भी डिवाइड किया 9 पार्ट में। तो उत्तर की तरफ वाला जो पार्ट है इसका, वो उत्तर का स्थान बोलेंगे उसको। तो अब यहाँ पर देखिए प्लॉट में 8 दिशाएं भी हो गई और 8 दिशाओं के स्थान हैं। तो ये स्थान अलग चीज है और दिशा अलग चीज है। जब हम स्थान बोलेंगे तो वो स्क्वायर आएगा, वो पर्टिकुलर रेक्टेंगल या स्क्वायर जो कुछ भी है उस प्लॉट के शेप के अकॉर्डिंग वो स्थान है उसका। और दिशा मतलब डायरेक्शन। वहां फॉर एग्जांपल आप दक्षिण के स्थान में उत्तरमुखी रह सकते हैं, या दक्षिण वाला स्थान है नीचे जो आपको दिख रहा है, इसमें पश्चिम मुखी भी बैठा जा सकता है या पूर्व मुखी भी बैठा जा सकता है। तो ये 8 दिशाएं और उनमें फिर 8 दिशाओं के स्थान किसी भी प्लॉट में, किसी भी वास्तु में, और उसके साथ में उस स्थान में फिर 8 डायरेक्शन यानी दिशा किस फेस में करना है हमें, वो सारी चीजें एनालिसिस में आगे जाकर हमें यूज होंगी। बीच का जो खाली जगह है ये ब्रह्म स्थान बोलते हैं इसको, ये ब्रह्म स्थान है। अब यहाँ पर वास्तु में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हम वैसे भी जानते हैं कि प्रकृति का जो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो 5 तत्व को मिला के हुआ है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को मिला के पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ माना जाता है। हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व हैं। उसी प्रकार वास्तु में, बिल्डिंग में किसी भी इन 5 तत्वों का स्थान निर्धारित है। ये जैसे नॉर्थ ईस्ट में जल है, ईशान जल का स्थान है, आग्नेय उसके नाम से भी क्लियर है, आग्नेय यानी अग्नि का स्थान, नैऋत्य यानी पृथ्वी, और वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट एयर या वायु का स्थान है। और बीच का जो जगह है ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान आकाश तत्व का स्थान माना गया है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी बिल्डिंग में हमें इन 5 तत्वों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। यदि कोई भी एक एलिमेंट कम हो जाए या ज्यादा हो जाता है तो उसमें फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए जल तत्व कम हो गया तो हम बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, हो गया इसको, पानी की कमी हो गई है उसको, ठीक है, तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। तो उसी ढंग से बिल्डिंग में भी हमें ये 5 तत्वों का बैलेंस बनाकर चलना होता है। इसका एनालिसिस फिर हम आगे अभी कैसे होता है ये आगे देखते हैं। अब कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी भी बिल्डिंग के लिए
हमने जैसे लैंड सिलेक्ट करना है, तो लैंड सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया बहुत से हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, उनको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है वहां लाइफ एनर्जी का। उस जगह में, उस जमीन में लाइफ एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसमें रहने वाले को उतना ज्यादा फायदा होगा, उसको स्वास्थ्य, धन, संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो ये लाइफ एनर्जी हमें टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है ये एनर्जी टेस्ट करने के लिए, कि आप जो अलग अलग प्रकार के अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, उनको लीजिए और उस जमीन में हम डाल देते हैं वहां पर, ठीक है, और पानी डाल दिया, जैसा हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके लिए जो व्यवस्था करते हैं वो सब करके और वहां पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि यदि 3 दिन बाद उसमें अंकुरण आ जाता है, अंकुरित हो जाए 3 दिन बाद, तो ये ऐसी जमीन वास्तु निर्माण के लिए या रहने के लिए, उपयोग करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। 3 दिन में यदि मान लीजिए वहां पर जो बीज हमने डाले हैं, अनाज का बीज, उसमें 3 दिन में यदि मान लीजिए अंकुरित हो जाता है, तो वो जगह सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देने वाली मानी गई है। इसका मतलब है वहां पर बहुत अच्छी लाइफ एनर्जी प्रेजेंट है। फिर दूसरा केस हो सकता है कि वो 5 दिन में उसमें अंकुरण आए। अब यदि 5 दिन में आता है, तब वो एक सामान्य जमीन मानी जाएगी, बहुत अच्छी नहीं है मगर ज्यादा खराब भी नहीं है, ऐसा हम उसको बोलेंगे। तो 5 दिन में यदि अंकुरण आ रहा है तो एक नॉर्मल जगह है, वो नॉर्मल भूमि है वास्तु बनाने के लिए और उपयोग करने के लिए। तीसरा केस है कि यदि 7 दिन लगे उसमें अंकुरण आने में, तो 7 दिन का मतलब है कि ये बहुत लेट इसमें अंकुरण आया है और ऐसी जगह रहने के लिए या उपयोग करने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर लाइफ एनर्जी बहुत कम है और इसमें वास्तु निर्माण ना किया जाए। और एक और है कंडीशन हो सकती है कि उसमें अंकुरण ना आए ही ना, 10 दिन बाद भी नहीं आ रहा है, तब फिर वहां तो किसी भी हालत में वहां जाकर मकान या कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ओवरऑल लाइफ एनर्जी जितने भी फैक्टर होते हैं वो सबको एक ओवरऑल रिजल्ट हमें इससे मिल जाता है। ये हमने टेस्ट करके यदि देख लिया वहां पर तब। फिर इसके बाद दूसरा कुछ टेस्ट हैं जो सॉइल की स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। इसमें ये एक डेंसिटी का टेस्ट होता है और एक परमियाबिलिटी के टेस्ट है। डेंसिटी के टेस्ट में क्या है, पहले उनका शायद ऐसा सोचना रहा होगा कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। तो डेंसिटी का टेस्ट करने के लिए 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट 2 बाई 2 बाई 2 फीट का एक गड्ढा खोदिए, एक पिट बनाइए वहां पर, ठीक है, एक पिट एक्सकेवेट किया मैंने वहां, और उससे जो मिट्टी बाहर निकलेगी, एक्सकेवेटेड सॉइल जो है, उसको वापस उसी में फिल कर दीजिए। उसको एक बार गड्ढा खोद दिया वहां से और वापस उसको फिल कर दिया। अब इसमें 3 कंडीशन रहेंगी। सबसे पहला कंडीशन है कि वो फिल हो गया और आपके पास सॉइल बाकी बची रहेगी। यदि सॉइल बाकी रहती है इसके फिलिंग के बाद में, तब ये बहुत अच्छा जगह है, ये सॉइल यहाँ की अच्छी है और इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेचुरल है कि उसका डेंसिटी ज्यादा होगी और एक्सकेवेशन के कारण वो लूज हो गया, और लूज होने के बाद जब हम फिर फिल करेंगे, लूज सॉइल फिल किया तो बाकी बची रहेगी। दूसरा कंडीशन है कि ये पूरा फिल हो जाए, ये जो पिट है ये पूरा सॉइल से फिल हो गया और सॉइल बाकी नहीं है, आपके पास एक्सकेवेटेड सॉइल भी नहीं है और ये जो पिट था ये पूरा फिल भी हो गया ऊपर तक, तब ये नॉर्मल सॉइल है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो है कि वो डाल दिया
और उसके बाद भी ये पिट अभी बाकी है, खाली है, इसमें जगह खाली रह जाए और सॉइल की जरूरत है अभी इसको पूरा फिल करने के लिए, तब ये ऐसा लैंड या ऐसी सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक नहीं है। तो ये इस ढंग से इसका डेंसिटी टेस्ट एक होता है। दूसरा है परमियाबिलिटी टेस्ट। परमियाबिलिटी टेस्ट में ये जो पिट है 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का, इसमें पानी भर देंगे, ऊपर तक का पूरा वाटर से फिल कर देंगे इसको टॉप लेवल तक, और उसके बाद 100 कदम किसी भी डायरेक्शन में जाइए और वापस आइए। 100 कदम तक जाना है एक नॉर्मल स्पीड से और वहां से वापस आएंगे। और जब आप वापस आकर देखते हैं इसमें, तो यदि पानी 3 अंगुल, अंगुल मतलब हम इंच मान सकते हैं, तो 3 इंच यदि कम हो गया है, तब फिर ये जगह ठीक नहीं है, ये दुख देने वाली भूमि मानी गई है, इसमें परमियाबिलिटी ज्यादा है। दूसरा कंडीशन है कि 2 अंगुल कम हुआ है। 2 अंगुल यदि पानी कम होता है तो फिर ये एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल मिट्टी है, सॉइल है, इसमें हम बना सकते हैं। और यदि 1 अंगुल कम हुआ है, 1 अंगुल 1 इंच या उससे भी कम पानी कम होता है ऊपर से टॉप लेवल से, तब फिर ये बहुत अच्छा सॉइल है और इसमें हमें करना चाहिए, करने की। दूसरा एक और टेस्ट है कि इसमें पूरा ऊपर तक वाटर फिल कर दिया और इसको छोड़ दिया। अब 100 स्टेप्स तक जाना नहीं है, इसको पूरा ऊपर तक का वाटर फिल कर दिया और छोड़ दें 24 आवर्स के लिए। 24 घंटे के बाद वापस जब हम इसको देखेंगे, तो यदि इसमें पानी थोड़ा सा बाकी रहता है, कुछ पानी भरा अभी भी दिख रहा है 24 घंटे के बाद, तब फिर हम बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी सॉइल है यहाँ की। दूसरी कंडीशन है कि पानी बिल्कुल भी बाकी नहीं है, ठीक है, पूरा पानी अंदर परकोलेट हो चुका है, तब ये एक नॉर्मल सॉइल मानी जाएगी। और यदि पूरा वाटर, पूरा पानी सूखने के बाद खत्म भी हो गया और उस सॉइल में क्रैक भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि पानी तो खत्म हो गया लेकिन उसमें साथ में कुछ क्रैक भी डेवलप हो गए हैं, तब फिर ऐसी जगह पर वास्तु निर्माण करना या कंस्ट्रक्शन करके उसको उपयोग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट है जिनको हम सॉइल की प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए हम वास्तु में यूज करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लैंड में है वो है उसका शेप। हमारे पास जो प्लॉट है और या लैंड है कंस्ट्रक्शन के लिए, जब कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं उसका शेप देखने का। तो ये शेप में कुछ शेप है, जैसे ट्रायंगल है नंबर 1, नंबर 2 में पेंटागन है और नंबर 3 सर्कुलर है। ये 3 शेप हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इनमें तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं करना है, ये छोड़ने वाले शेप हैं, इनको छोड़ देना है, ये कहीं से भी शुभ नहीं है। हाँ, ये सर्कुलर शेप है नंबर 3 में, ये सर्कुलर शेप केवल राजा के लिए, राजा का भवन है या महल है, उस महल के निर्माण के लिए बस शुभ है, बाकी आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए ये शुभ नहीं है, राजा केवल बना सकता है। अब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करें, ये बहुत कॉमन है, हमेशा वैसे भी नॉर्मली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के प्लॉट हमें देखने मिलते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट यदि है तो इसमें लेंथ और विड्थ का रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि मान लीजिए इसकी लेंथ विड्थ से 2 गुने से ज्यादा है तो फिर ये प्लॉट ठीक नहीं है। हमेशा लेंथ और विड्थ का रेशियो 2 से कम होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हम एक ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी प्लॉट में हम ले रहे हैं या उसमें अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लेंथ एंड विड्थ
का रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2, 2 से कम है तो बहुत अच्छा है। इसमें फिर कुछ अच्छे रेशियो भी हैं, अच्छे प्रोपोर्शन है, जैसे गोल्डन रेशियो में यदि मिलता है, ये लेंथ और विड्थ का रेशियो यदि गोल्डन रेशियो में है तो गोल्डन रेशियो होता है 1.61 के लगभग, है ना। उसका फिर आगे तक का और है डिजिट्स, तो मगर 1.61 यदि लेंथ और विड्थ का रेशियो आ रहा है तब ये बहुत अच्छा रेशियो इसका माना जाएगा। और दूसरा एक और है जिसको वास्तु में बहुत अच्छा माना गया है, सुख समृद्धि देने वाला माना गया है, वो है स्क्वायर शेप। यदि लेंथ और विड्थ बराबर हैं, चारों साइड उस प्लॉट की या उस लैंड की यदि बराबर आती हैं, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा लैंड इसको हम बोलते हैं। फिर अब मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब ये रेक्टेंगुलर में भी जो अभी हम देखते हैं कि कॉलोनाइजर्स कॉलोनी बनाते हैं, अब उसको तो सीधा लैंड पूरा मिला नहीं, उसने कुछ एकड़ में लैंड लिया था, अब उसमें प्लॉटिंग किया, तो कुछ शेप उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है रेक्टेंगुलर से। अब ये इसका चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है, इसको हम थोड़ा सा समझें और कितने टाइप से ये चेंज हो सकता है। ये फिगर नंबर 6 देखिए, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट और डायरेक्शन है, वहां का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। अच्छा, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है मेरा, इसमें आप देखिए नीचे राइट साइड में बॉटम कॉर्नर में मैंने डायरेक्शन लिखा हुआ है, ये सभी स्लाइड में है, और पूरा प्रेजेंटेशन में मैंने डायरेक्शन यही ली है, नॉर्थ ऊपर की साइड और राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है प्लॉट नंबर 6 का, इसका एंगल 90 डिग्री से कम है। जब किसी भी कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री से कम हो जाए तब हम उसको बोलते हैं कि ये इसका नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया है। ठीक है, इसका नॉर्थ ईस्ट का एरिया इंक्रीज हो गया है। जो एक नॉर्मल था 90 डिग्री एंगल यदि होता तो उस समय जो जितना एरिया नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था उससे इंक्रीज हो गया है। और इसमें जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, ये कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो मोर देन 90 डिग्री यदि है तो वहां वो कॉर्नर या वो डायरेक्शन इसमें कम हो गई है। उसका जो स्थान है, जो पहले मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि प्लॉट में सभी दिशाओं के स्थान हैं, जैसे नॉर्थ का स्थान है, उत्तर का स्थान, ईशान का, वायव्य का, तो ये प्लॉट नंबर 6 है, इसमें ईशान बढ़ा हुआ है और वायव्य कम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फिर इफेक्ट आएगा। ये थोड़ा सा, ये नॉर्थ का बढ़ना और वायव्य का थोड़ा सा कम होना, इसको शुभ माना गया है, ये कुछ अच्छा फल देने वाला है। फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का एक और दूसरा केस देखें, फिगर नंबर 7 में। इसमें ये नॉर्थ ईस्ट तो क्लियर दिख रहा है, कट गया है। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट यानी जल तत्व का स्थान इस प्लॉट में कम हो गया है। अब ये नॉर्मल जितना होना था, ये पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल यदि हम बनाए तो वो फिर बैलेंस्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट गया है और ये कुछ समस्याएं देने वाला है। इसमें उपयोग करने वालों को कुछ समस्याएं रहेंगी, प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम रहेगी, धन की हानि होगी, कुछ स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। प्लॉट नंबर 8 है, ये भी एक तरीका है नॉर्थ ईस्ट के कटने का, जो ईशान दिशा है उस ईशान का कटने का एक तरीका इस ढंग से भी है कि ये तिरछा होके ये कट गया यहाँ पर, इसमें भी सेम रिजल्ट है। अब फिगर नंबर 9 हम देखें, ये फिगर नंबर 7 और 9, इसका शेप लगभग एक जैसा है, बस अंतर ये है कि 9 में ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये बड़ा हो गया है। अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लिमिटेड होकर ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो इसको ईशान कटा हुआ नहीं बोलेंगे ना। इसमें हमें डायमेंशन इसीलिए देखना होते हैं कि यदि कोई जगह
कट रही है, यदि मान लो कोई कॉर्नर या कोई भी पार्ट उसका कट रहा है, तो क्या डायमेंशन है उसके और उसके क्या। हाँ, अब आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, अब हम इसको चालू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आग्नेय दिशा है, ये इसमें इसको हम बढ़ा हुआ मानेंगे। अब इसी ढंग से हम बाकी दिशाओं का, बाकी जो दिशाएं हैं, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय या नॉर्थ ईस्ट, उन सबको हम समझें कि कौन सी दिशा बढ़ रही है और कौन सी दिशा इसमें कम हो रही है या कट गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस वास्तु का एनालिसिस होगा। अब ये इसमें दिशाओं का बढ़ना या कटना, ये दोनों का एनालिसिस हम प्लॉट में भी करेंगे और जो उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है उसका भी देखेंगे। दोनों का अलग अलग देखेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका क्या इफेक्ट उसमें रहने वालों पर या जो यूज करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आ रहा है, उसका हम एनालिसिस फिर करेंगे। अब इसमें जैसे ईशान दिशा, जो ये जो एग्जांपल मैंने दिखाया आपको, यदि वो कट गया है, तब फिर उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए सुख समृद्धि उनकी खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, दूसरी तरफ ये जो प्लॉट नंबर 6 है, इस ढंग से यदि बढ़ गया तब ये बहुत अच्छा प्लॉट माना जाता है वास्तु के हिसाब से, और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस और सुख समृद्धि उसमें रहने वालों को देता है। पूर्व दिशा यदि कट जाए, मान लीजिए पूर्व दिशा जो बीच में है वहां से थोड़ा सा अंदर कट के यदि प्लॉट आ रहा है, तो वहां पर उसका उपयोग करने वालों को अशांति फिर आ जाती है, थोड़ा सा अशांति मिलती है। आग्नेय दिशा यदि कट रहा है, देखिए ये आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शंस, ये कॉर्नर्स ऐसा है यदि थोड़ा सा कटते हैं तब बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इनका थोड़ा सा कटना तो अच्छा फल है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा और ज्यादा का वर्ड मैं जो यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है कि ये कम कट रहा है कि ज्यादा कट रहा है। लेकिन यदि ये तीनों कॉर्नर ज्यादा कटते हैं तब फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी साथ में देते हैं। तो ये हम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अभी कम है, अच्छा फल केवल दे रहा है कि उसके साथ में कुछ खराब इफेक्ट भी दे रहा है। जैसे आग्नेय यदि ज्यादा कट जाए तब फिर वहां स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। नैऋत्य है, यदि ज्यादा कट गया थोड़े से में तो फायदा देगा, लेकिन यदि ज्यादा कट गया है नैऋत्य दिशा, तब वहां ग्रह स्वामी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें। वायव्य दिशा यदि ज्यादा कट जाए तो उसमें रहने वाले लोग थोड़े कम एक्टिव होते हैं, फिर वहां पर एक्टिविटीज कम होती है, और नेचुरल है जब एक्टिव नहीं रहेगा आदमी तो उसको फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उसमें सबसे पहला देखिए, आर्थिक मामला ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें आर्थिक संकट तो सबसे पहले आता है। तो ये वायव्य यदि कट गया, एक्टिव नहीं रहेगा आदमी, तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाती है। दक्षिण भी ऐसा है, दक्षिण यदि कम हो जाए, ये तो अभी हमने 4 कॉर्नर की विदिशाओं की बात की थी, अभी मान लीजिए दक्षिण थोड़ा सा कम होता है तब ये शुभ होता है। लेकिन यदि ज्यादा कट गया तब फिर इससे भी कुछ पुरुष सदस्य जो हैं उन पर प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। पश्चिम दिशा है, यदि ये कम है, थोड़ा सा कम है, तब ये भी फायदे का है, ज्यादा कम इसका भी होना ठीक नहीं है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है, और उत्तर दिशा यदि कट जाए तो फिर उसको निश्चित रूप से धन की समस्या थोड़ी सी आ सकती है। यदि उत्तर दिशा बढ़ गया, किसी प्लॉट में ऐसा मिल जाए कि उत्तर दिशा बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है,
70 का जो हिस्सा है, जो मैंने शुरू में 9 डिवीजन करके बताए थे उसमें से, तब उसको बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति मिलने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद हम ये एक एग्जाम्पल देखें, ये प्लॉट का। ये एक बार एक सज्जन कोई मेरे पास ये प्लॉट लेकर आए और बोले इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, मकान बनाना है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये प्लॉट कैसा है? मैंने पूछा उनसे कि भाई आपको किसके लिए बनाना है? बोला वो जो लोग इसमें रह रहे हैं उनके लिए इसमें मकान बनाना है। तो मैंने पूछा वो लोग खुद बना रहे हैं कि अपने लिए मकान? बोले हाँ, इसमें उनको अपने लिए मकान बनाना है। तो अब ये प्लॉट जो बोल रहा है, इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है पूरा, और नॉर्थ भी थोड़ा सा कट रहा है। अब इसमें जो लोग रहते हैं उसमें रहने वाले को ना तो प्रोग्रेस मिलेगी और पैसे का भी नुकसान है। मैंने उनसे पूछा ये लोग कब से रह रहे हैं इसमें? बोले बहुत लंबा समय हो गया, 80-100 साल हो गया है, 100 साल लगभग से रह रहा है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो बात कुछ ठीक जम नहीं रही है। इसमें जो लोग रहेंगे उनके पास तो इतना पैसा रहेगा नहीं कि वो मकान बनाए। ये कैसे बन रहा है मकान? ये कैसे बना रहे हैं वो अपना मकान गिरा के? तो बोले कि नहीं आप तो बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको बोला कि ये तो प्रोग्रेस भी नहीं दे रहा है और पैसे का नुकसान भी दे रहा है। मतलब जो पैसा चला गया उसके बाद वो उसकी रिकवरी भी नहीं कर पाएगा कभी, इसमें रहने वाला जो है, और उसकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से कमजोर रहने वाली है। तब उन्होंने बताया कि ये जो प्लॉट है इसमें इनका एक लड़का था, वो लड़का बचपन में यहाँ से चला गया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, और वहां जाके उनने बिजनेस शुरू किया और आज की स्थिति में उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है अपने बिजनेस से। तो अब वो अपना जो पुश्तैनी घर है तो वो वहां से आके इसको बना रहे हैं। तो बोले अभी जो बाकी लोग इसमें रहते हैं तो उनकी स्थिति तो निश्चित रूप से नहीं है ऐसी, बहुत लंबे समय से नहीं है, ठीक। तो वो जो है मगर वो इसमें आके और इसको बनाएंगे। तो आप इसका वास्तु ठीक कर सकते हैं क्या? कर देंगे? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ हो जाएगा, इसको ठीक कर देंगे हम, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ऐसा कर लेंगे। तो इसको मैंने फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये करने से क्या हुआ, ये एक अलग हो गया, दूसरा ये अलग हो गया। तो ये जो बड़ा पार्ट है इसका, ये रेक्टेंगल हो गया पूरा, इसका शेप बढ़िया आ गया। और इसमें अभी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का ये तिरछी लाइन जा रही है, ईस्ट साइड वाला, और ये थोड़ा सा अभी कट रहा है, इसमें भी अभी प्रॉब्लम है। तो ये इतना कम छोटी सी प्रॉब्लम थी कि इसको एक सीधी वॉल बना के और इसको ठीक कर दिया, और इसमें फिर पूरा रेसिडेंशियल जो कुछ भी बनना था वो सब बना दिया। और उसके बाद से फिर यहाँ पर इनको धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलना भी शुरू हो गई। तो
अजीत सर आप वापस से चालू कीजिए सर, यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ, अब आ रही है ना जी आवाज? सर। ठीक है भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये जो ये प्लॉट है, इसको इस ढंग से हमने इसका वास्तु ठीक कर दिया और उसके बाद इसमें एक अच्छा रिजल्ट इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको मिलने लगा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्लॉट में और बिल्डिंग में, वो है उसका ओरिएंटेशन। एनर्जी का फ्लो प्रकृति में नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। जो एनर्जी आती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी। तो हमें जब भी एनर्जी लेना है या कोई भी हम काम करते हैं तो हमें नेचुरल एनर्जी या लाइफ एनर्जी या कुछ लोग कॉस्मिक एनर्जी भी उसको बोलते हैं, वो हमें मिलती रहे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बैठिए। वो अलग अलग उसका है कि नॉर्थ में कब बैठना है, ईस्ट में कब बैठना है। तो इसमें कोई भी बिल्डिंग है या प्लॉट है, उसको मैक्सिमम एनर्जी उसके पास केवल तभी आएगी जब उसकी साइड्स नॉर्थ साउथ के पैरेलल रहें, दो साइड, और दो साइड ईस्ट वेस्ट के पैरेलल रहें। एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का प्लॉट है या कोई वास्तु है और उसमें वो दो साइड उसकी नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं, जो फिगर नंबर 1 है, इसको आप देखिए, नॉर्थ साउथ के पैरेलल या ईस्ट वेस्ट के, ये बेस्ट ओरिएंटेशन माना जाता है। फिर थोड़ा सा इंक्लाइंड होना शुरू हो गया नॉर्थ और उसकी साइड, एक साइड के बीच में एंगल मान लीजिए 5 डिग्री हो गया, तो ये जो प्लॉट या ये जो बिल्डिंग है जो एनर्जी रिसीव करेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका। 10 डिग्री हो गया, थोड़ा और कम हो जाएगा। इसको 15 डिग्री तक, 20 डिग्री तक हम मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा एनर्जी उसको मिलेगा। फिर भी 20 डिग्री हो गया यदि ये एंगल, तब भी उसको कुछ एनर्जी मिलता रहेगा और एक काम उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका चलता रहेगा। एनर्जी कम रहेगी मगर रहेगी। लेकिन यदि 45 डिग्री हो जाए इसके साइड के बीच में एंगल, तो 45 डिग्री होने पर उस बिल्डिंग में या उस प्लॉट में एनर्जी जीरो हो जाएगी। वो ये ऐसे जो मकान हैं या ऐसे जो प्लॉट हैं, इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसमें हम जनरली 30 डिग्री के एंगल के बाद फिर इसको छोड़ देते हैं। 25 डिग्री तक मान लिया कि थोड़ा थोड़ा कुछ तो आएगा इसमें, लेकिन 30 डिग्री से ज्यादा यदि मान लीजिए हो गया, तब फिर इसको अच्छा नहीं माना जाता है वास्तु में कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं, धीरे धीरे एनर्जी की कमी होगी तो बहुत ढेर सारी समस्याएं लंबे समय में आना शुरू होती है। एकदम से शुरुआत में हो सकता है ना आए। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि यदि इस प्लॉट का डायरेक्शन फेसिंग या इस प्लॉट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि रोड है, ईशान की तरफ यदि रोड है, उसको नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाएं मिल रही हैं, तब फिर ये ठीक है, इसको हम बना सकते हैं। इसमें केवल एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, बाकी किसी भी डायरेक्शन वाला प्लॉट है आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य में, तो उसको उपयोग नहीं करना है, उसको वास्तु निर्माण में काम में नहीं लेना है। इसका जो ओरिएंटेशन है, इसको हम देखें, एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है साथ में हमारे पास, ये पिरामिड, गीजा के पिरामिड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये पिरामिड वास्तु सुधार में हम लोग बहुत यूज करते हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज हैं इसको बनाने लगे हैं, प्लास्टिक के पिरामिड बने बनाए भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका, लेकिन आप यदि कभी भी कोई पिरामिड मार्केट में ले रहे हैं तो उसका जो रेडीमेड पिरामिड है, डायमेंशन सही होना जरूरी है। ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इसके डायमेंशन है। तो ये इसके डायमेंशन में आपको बताता हूँ, कभी भी कोई भी पिरामिड लेने से उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बहुत सारे यूज हैं, कुछ मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इसका यदि डायमेंशन सही नहीं है, एंगल सही नहीं है,
तब फिर ये कोई फायदा आपको नहीं देगा। तो इसमें ये देखिए जो बेस है स्क्वायर बेस, ये स्क्वायर बेस यदि 11 यूनिट है, यूनिट कोई भी ले लें हम, यदि 11 है इसका बेस की एक साइड, तो हाइट 7 होना चाहिए, इसकी हाइट 7 होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर शेप जो बनेगा उसमें सारे एंगल अपने आप सही आ जाएंगे। और ये पिरामिड जो गीजा में पिरामिड बने हुए हैं उसमें, और ये जो शेप है इसी प्रोपोर्शन के पिरामिड वहां भी बने हुए हैं। तो ये इसमें बहुत से मैथमेटिकल कांस्टेंट की वैल्यूज इससे आती है। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने दिया, एक कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं कि इसका बेस और हाइट का रेशियो यदि हम निकालें तो ये 11/7 है, जो π/2 के बराबर है। पाई एक कांस्टेंट है, 22/7 होता है, तो π/2 के बराबर इसका बेस और हाइट का रेशियो होता है। अब यदि आपको मान लीजिए, ये तो मार्केट में अवेलेबल है, मैंने तो इसको अपने हाथ से बना के टेस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए, ये पिरामिड में 4 ट्रायंगल्स को मिला के बनता है। चारों तरफ 4 ट्रायंगल लीजिए और उनको मिला के बना दीजिए। तो जो ट्रायंगल आपको एक बनाना है, आप किसी भी चीज से, प्लाईवुड से या किसी कार्ड शीट का बनाते हैं, तो उसमें जो ट्रायंगल बनाएंगे वो 2 साइड उसकी 20.9 यूनिट की आप बनाइए। 2 साइड जो आपको ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर इंक्लाइंड जो दिख रही है, ये इंक्लाइंड साइड 20.9 है और बेस 20 यूनिट का। सेंटीमीटर में यदि बना रहे हैं तो 20.9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इस ढंग के 4 ट्रायंगल बना लीजिए और उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये आपका घर में आपका पिरामिड बन जाएगा। और इस पिरामिड से फिर बहुत से यूज हैं जिनको आप कर सकते हैं। यदि इसके नीचे आप कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल रखते हैं जो डिकम्पोज होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फूड आइटम रख दिया, इसमें आप एक छोटा सा कटोरी में दूध रख सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत दिन तक ये खराब नहीं होगा। वैसे कंसेप्ट तो ये है कि कभी खराब नहीं होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके डायमेंशन कितने एक्यूरेट हैं। मैक्सिमम एनर्जी इसमें बेस से h/3 हाइट पर होती है। बेस से h/3 हाइट पर जो पॉइंट आएगा वहां पर इसमें मैक्सिमम एनर्जी का कंसंट्रेशन होता है। उस जगह पर यदि आप कोई भी चीज रख देते हैं तो वो कभी खराब नहीं होगी। और भी बहुत सारे यूजेस है इसके नीचे। आप यदि कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर यदि इसको रख देंगे, प्लांट के लिए यदि यूज करना है, तब फिर ये ट्रायंगल सॉलिड नहीं होना चाहिए, इसमें फिर केवल एजेस बनाना है इसकी। ये जो पिरामिड है बेस की 4 एज बनेगा और ट्रायंगल्स जो हैं इंक्लाइंड एजेस हैं, केवल उनको किसी चीज से आप बना लीजिए। लकड़ी से भी बना सकते हैं या किसी मेटल का भी बना सकते हैं। और वैसा बनाएंगे तो इसमें जिससे हवा का सर्कुलेशन होता रहेगा, उसको सनलाइट भी मिलती रहेगी। वैसा बना के इसको यदि किसी प्लांट के ऊपर रख देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके अंदर कोई आप एक बॉटल में वाटर रख दीजिए और उसको थोड़ी पूरी रात के लिए रखकर छोड़ दीजिए और फिर सुबह आप उसको पिएंगे तो बहुत फायदा करने वाला ये होता है। उसकी धीरे धीरे करके कुछ बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती है। इस ढंग के बहुत से यूज हैं। लेकिन हम वास्तु में जहां भी हम देखते हैं कि यहाँ एनर्जी की इसको कमी हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसा मैंने ऊपर बताया कि जो तिरछा डायरेक्शन है, यदि इंक्लाइंड हो गया, नॉर्थ ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, तो वहां पर हम पिरामिड का यूज करके उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जो वो डिपेंड करेगा कि उसका शेप कैसा है, डायरेक्शन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग पिरामिड की पोजीशन डिसाइड होगी। और उसके बाद उससे उस वास्तु की, उस बिल्डिंग की या उस प्लॉट की एनर्जी एक नॉर्मल लेवल पर या उसमें रहने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस लेवल तक हम लाते हैं और ला सकते हैं। अब
इसके बाद हम देखें कि एक आइडियल पोजीशन, आदर्श स्थिति किसी भी प्लॉट में वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग की क्या होती है और क्या उसका शेप होता है। ये एक प्लॉट है, ये स्क्वायर प्लॉट लिया है मैंने। अब इस स्क्वायर प्लॉट को नॉर्थ से साउथ 9 पार्ट में डिवाइड कीजिए और ईस्ट से वेस्ट 9 पार्ट में डिवाइड कीजिए। इस ढंग से ये 81 स्क्वायर इसके अंदर बन गया। अब इसमें से आप देखिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में एक पार्ट हमने छोड़ दिया। ये साउथ से हम चलेंगे तो नॉर्थ से साउथ 9 पार्ट में डिवाइड किया था, तो साउथ वाली डायरेक्शन में एक पार्ट छोड़ दिया और नॉर्थ वाली डायरेक्शन में 2 पार्ट छोड़ दिया। इसी ढंग से ईस्ट में 2 पार्ट छोड़ दीजिए और वेस्ट में 1 पार्ट छोड़ दीजिए। तो बाकी जो जगह बची उसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा। इसमें ये बिल्कुल आइडियल है। साउथ में जितना स्पेस छोड़ेंगे उसका डबल नॉर्थ में छोड़ना है। ईस्ट वेस्ट में जितना स्पेस छोड़ेंगे उसका 2 गुना ईस्ट में खाली जगह छोड़ देना है। और इसके बीच में सेंटर में अब 2 पार्ट में आप रूम बनाइए चारों तरफ। जो भी प्लानिंग करना है वो प्लानिंग हो जाएगी एज पर वास्तु। और बीच का जो जगह बाकी है ये ब्रह्म स्थान है। आप देखिए ये दो लाइन को मिला के इसको 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इसको 3-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जैसा शुरू में हमने फिगर देखा था उस ढंग से 9 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो व्हाइट कलर से इसमें दिख रहा है ये बीच का स्थान, ये ब्रह्म स्थान है। तो ये ब्रह्म स्थान खाली रहना है। आप देखिए जैसे पुराने जो मकान होते थे उनमें जनरली बीच में एक आंगन होता था ना, ये वही स्थान है, इसको खाली छोड़ना है। ये ब्रह्म स्थान है क्योंकि आकाश तत्व का स्थान है। तो आकाश मतलब क्या? खाली स्थान ना, वहां कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कुछ भी बनाना नहीं है। अब इसमें जो वास्तु पुरुष है, जो वास्तु पुरुष की मैंने शुरू में फिगर दिखाया था उसमें नॉर्थ ईस्ट में उसका सिर है, साउथ वेस्ट में उसका पैर है। अब एक पॉइंट होता है हमारे शरीर में जिसको हम बोलते हैं नाभि या नेवल। ये नाभि है, इसका आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा आयुर्वेद में लोग बोलते हैं कि इसमें आप कोई भी चीज लगा लें, कुछ भी लगा लें, मान लीजिए घी लगा लिया आपने, तो वो घी का इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों को आप देखिए कई बार उनका मान लीजिए पेट ठीक नहीं है तो यहाँ हींग लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी आप लगाओगे वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसको यही से पूरा खाना मिलता है उसके, और बाद में भी अभी भी पूरा बॉडी का कनेक्शन ये नाभि से होता है। ये बेकार की चीज नहीं है, यहाँ पर ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो पॉइंट है ये उस वास्तु पुरुष का नाभि है, ये उस वास्तु पुरुष का नाभि है। तो इसका भी वही इंपॉर्टेंस है जो हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से नाभि का है, वही इंपॉर्टेंस बिल्डिंग में या वास्तु में इस पॉइंट का है। इस पॉइंट पर आप जो कुछ भी काम करेंगे या कोई भी इसकी जो भी स्थिति होगी उसका इफेक्ट पूरे बिल्डिंग में रहेगा। यदि आप यहाँ पर गंदगी रखते हैं, कचरा रख दिया मान लीजिए किसी ने, तो घर में सभी लोग बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आइडियल पोजीशन क्या होती है? जैसा हमारे यहाँ परंपरा है इंडिया में, हम यहाँ तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी का पौधा आप लगाएंगे तो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो इसमें रहने वालों को मिलेंगे। पूरा बिल्डिंग में रहने वाले जो भी लोग हैं उन एनर्जी रहेगी उनमें और स्वास्थ्य भी उनका बहुत अच्छा रहेगा। यदि यहाँ पर ये जो सेंटर स्थान है, सेंटर वाली जगह है, इसमें गड्ढा कर दिया, ठीक है, गड्ढा कर दिया मतलब या तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया या वेल बना दिया या ट्यूब वेल बना दिया, तब ये
उसमें रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि ये आपने वास्तु पुरुष का जो नाभि स्थान है या जो पेट है ना, उसमें आपने छेद कर दिया है, ये मान के चलिए। तो जब आप किसी के भी पेट में छेद कर दोगे तो फिर उसका क्या स्थिति होगी? तो वही सेम स्थिति जो है इसमें रहने वालों को की होती है और इस वास्तु की हो जाती है। तो ये इसके बाद हम देखें ये बाउंड्री वाल। जो बाउंड्री वाल है किसी भी बिल्डिंग में हम बनाते हैं, ये उस वास्तु को सुरक्षा देने का काम करती है, उसकी सेफ्टी के लिए है। वास्तु के हिसाब से उसमें रहने वालों को सेफ्टी यदि देना है, जैसे खेत में हम बाड़ लगाते हैं, खेत की एक बाउंड्री लगा के वहां पर बाड़ लगा देते हैं जिससे कोई जानवर नहीं आ पाए, और वो खेत की सुरक्षा के लिए है। उसी प्रकार ये वास्तु की बाउंड्री उस वास्तु की सुरक्षा के लिए होती है। बिना बाउंड्री के यदि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसमें कभी कभी कुछ नुकसान भी होते हैं उसमें जो रहने वाले लोग हैं। अब ये यदि आइडियल पोजीशन को हम देखें इसमें, तो बाउंड्री में 2 दरवाजे होना चाहिए, एक ईस्ट में और एक नॉर्थ में। अब यदि अब आज की स्थिति हम देखें तो 2 साइड का रोड वाला प्लॉट मिले ये थोड़ा सा कम होता है, सभी को नहीं मिल सकता है। तो एक ही साइड है, यदि नॉर्थ डायरेक्शन है या ईस्ट डायरेक्शन है, उसमें भी 2 दरवाजे बनाइए, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये बहुत अच्छा और शुभ होता है। और उस दरवाजे को डेकोरेट भी करना है, वो जो गेट रहेगा उसको हम डेकोरेट भी करें तो उसमें जो रहने वाले लोग हैं उसको ये बाउंड्री सुख समृद्धि देने वाली होती है। अब ये बाउंड्री का जो दरवाजा है ये कई बार अपने आप खुलता है या अपने आप बंद होने लगता है, थोड़ा सा जिस कॉलम पर उसको फिक्स किया है वो कई बार क्या होता है थोड़ा टिल्ट हो जाता है ना, और या ठीक ढंग से फिट नहीं किया है, तो ये दरवाजा अपने आप बंद हो सकता है। तो ये यदि दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है तो उसमें रहने वाले लोगों को थोड़ा सा डर लगता रहता है, किसी ना किसी चीज को लेके उनको अंदर कभी कभी डर आएगा, डरने लगेंगे कि अरे ये कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस ढंग का डर को पैदा करने वाला है। अब ये बाउंड्री वाल दक्षिण और पश्चिम में इसको ऊंची रखना है और साथ में इसको थोड़ी मोटाई भी ज्यादा करना है। यदि मान लीजिए नॉर्थ और ईस्ट में आपने 9 इंच की दीवार बनाई है तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में आप 13 इंच की वॉल बना सकते हैं। थोड़ी सी मोटी इसको रखना है, इसकी थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा रखना है नॉर्थ से और ईस्ट डायरेक्शन से, तो इससे ये स्वास्थ्य और संपत्ति देने वाली बाउंड्री इसको मानते हैं हम। यदि उत्तर की दीवार ऊंची हो जाए, किसी बिल्डिंग में ऐसा है कि उसने बाउंड्री बनाया और नॉर्थ का ऊंचा कर लिया है, तो ये उसका आर्थिक हानि करने वाला है, उसके धन का नाश करने वाला है, उसको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। ईशान में यदि ऊंचा है तब भी ये बहुत कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करता है। अब मैं प्रॉब्लम्स क्या पैदा करता है इसको मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि हो सकता है कि किसी के घर में हो अभी और फिर आपको उसको लेके टेंशन आ जाए, तो वो मैं नहीं चाहता। आप कोई भी चीज यदि ऐसे सिम्टम आपके घर में है तो उसको किसी अच्छे वास्तुविद को दिखा लें, लेकिन टेंशन ना करें, है ना, उस सारी चीजों का इलाज है, सब कुछ ठीक हो जाता है। नैऋत्य में ऊंचा यदि है तो नैऋत्य में ऊंचा होने पर उसको यश मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। देखिए यदि आपका किसी के प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान का बाउंड्री ऊंची हो गया है, ठीक है, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तब फिर उसका बहुत सिंपल रेमेडी है
कि आप साउथ वेस्ट की वॉल अपनी ऊंची कर लीजिए, इतना ऊंचा कर लीजिए कि वो नॉर्थ ईस्ट की वॉल से ऊंची हो जाए। बस ये, इससे आपका जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही होगी वो ठीक हो जाएगी। वायव्य में थोड़ा सा ऊंचा होना परमिसिबल है, चल सकता है, इसको हम अलाउ कर सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत फायदा ही होगा। अब इसमें हम एक केस स्टडी देखें, ये बाउंड्री वॉल का क्या इफेक्ट होता है इसको हम समझें। देखिए ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट में ये फैक्ट्री बनी है, ये फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है अभी इसमें और बहुत संतुष्ट हैं इसके जो ओनर हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एक बार मेरे पास आए, बोले साहब ये मेरी फैक्ट्री अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही थी, फैक्ट्री में कोई चेंज मैंने किया नहीं, लेकिन अभी कुछ समय से इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। मैंने बोला कितने दिन से प्रॉब्लम शुरू हुआ? बोले 15 दिन हो गया। 15 दिन से तो रोज उसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अब पता नहीं क्या हो गया है। मैंने पूछा आपने कोई चेंज किया था क्या उसमें? बोले हाँ मैंने इसमें केवल बाउंड्री बनाई है, बोले फैक्ट्री में कोई चेंज नहीं किया है केवल। अब ये इनका जो प्लॉट था उसमें इन्होंने बाउंड्री बनाई, तो ये बाउंड्री देखिए पहले अभी हम इस पोजीशन में देख ले, अभी क्या है इनका साउथ वेस्ट में फैक्ट्री है और ये नॉर्थ में इतना ओपन है, ईस्ट ओपन है और नॉर्थ में और आगे का भी रोड के उस तरफ भी ओपन था, तो उसका सारा बेनिफिट मिल रहा है। वास्तु में जो इफेक्ट किसी भी वास्तु का आता है उसमें उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास रजिस्ट्री कितने लैंड की है। रजिस्ट्री का लैंड कुछ भी हो, बाउंड्री वो मानी जाएगी जो नेचुरली दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये नॉर्थ में रोड है, साउथ में ये एक रोड है, ये इसकी बाउंड्री अभी आपको दिख रही है क्लियर। इसमें देखने से ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैक्ट्री के ओनर के पास Well, good afternoon, everyone. We truly appreciate you all that you came on a short notice, rejoining again for the session Wonders of Vastu Shastra. So I welcome Ajit Kumar Jain sir again. Sir, you can start the webinar once again. Thank you. वेलकम बैक। ये आइडियल पोजीशन ऑफ बिल्डिंग ऑन प्लॉट, ये हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्लॉट है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो इस स्टाइल में बिल्डिंग बनती है, इसमें सभी रूम्स के डोर्स और एटलीस्ट 1 विंडो सभी रूम में। इस बिल्डिंग के अंदर ये जो ओपन स्पेस है जनरली वहां पर ओपन होता है, क्रॉस वेंटिलेशन भी मिलता है, उसके कारण एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। लेकिन एक बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, हम जिस टाइप की बिल्डिंग में रहते हैं सभी लोग, और अभी जो ट्रेंड है जिस बिल्डिंग बनाने का, प्लानिंग का, उसमें जब हम किसी एक रूम में आ जाते हैं, हमारी जो बिल्डिंग है अभी स्टाइल जो चलती है प्लानिंग का, उसमें एक रूम में जाने के बाद उस रूम में जो भी पर्सन है वो, उसकी विंडो बाहर की तरफ ओपन होती है, और बाहर की तरफ ओपन होने से और अंदर का दरवाजा जनरली हम बंद कर लेते हैं, तो क्या होगा कि वो बाहर से ज्यादा कनेक्टेड है बजाय अपने घर के। और ऐसा सभी कमरों में होता है। इवन बहुत से बिल्डिंग्स तो ऐसी भी मिलेंगी कि बिल्डिंग के एक पार्ट में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो दूसरे पार्ट से एकदम आइसोलेट होकर होती है। दूसरे पार्ट में समझ में नहीं आता है कि वहाँ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है। एक रूम में यदि मान लीजिए कोई बैठ गया
तो उसको अपनी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है ये उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि अपने घर के लोगों से लोग डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है जितना बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टाइल है इसमें डोर्स अंदर की तरफ ओपन हो रहा है, एक एक विंडो भी एटलीस्ट सभी कमरों में आएगी जो अंदर की तरफ ओपन होगी, और किसी भी रूम में कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर के अंदर उस बिल्डिंग के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। एक रूम में से यदि कोई बाहर निकलेगा तो वो सभी रूम में से दिखेगा कि ये कोई भी व्यक्ति बाहर निकल रहा है और ये कोई भी एक्टिविटी जो भी वो कर रहा है वो सारा। तो ये अपने घर के जो दूसरे लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है और जिसके कारण उनमें आपस में प्रेम बढ़ता है। तो ये एक ये इस स्टाइल का एक दूसरा बड़ा एडवांटेज है। इसमें यदि हम मकान बनाते हैं, बीच में ओपन है, यहाँ बच्चे लोग खेल भी सकते हैं, तो आप किसी भी रूम से आप उनको देख सकते हो कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं और सभी जगह से कनेक्टेड है। अब ये बाउंड्री वॉल हमने डिस्कस की थी पहले, और ये एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि बाउंड्री वॉल जो हमें बनाते हैं किसी भी वास्तु में और बिल्डिंग में, तो उसका नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड की वॉल हल्की रहे, हल्की मतलब थिकनेस उसकी थोड़ा कम रखें, और हाइट भी थोड़ा सा कम रहे इन कंपैरिजन टू साउथ और वेस्ट की वॉल। साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल को हम थोड़ा थिकनेस में ज्यादा बनाएं और हाइट भी थोड़ा सा ज्यादा रखें, तो इस टाइप का जो वास्तु रहेगा उसको हर प्रकार का सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें इन्होंने क्या किया कि ये पहले फैक्ट्री था और ये पूरा स्पेस इनका ओपन था। अब उसके कारण इस फैक्ट्री की पोजीशन साउथ वेस्ट में आ रही थी। वास्तु में पेपर पे आपके पास कितना प्लॉट है, रजिस्ट्री में क्या एरिया लिखा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वहां पर तो फिजिकली जो बाउंड्री दिख रही है वो आपकी मानी जाएगी। तो ये बिना बाउंड्री के ये जब फैक्ट्री थी तब इसमें नॉर्थ साइड बहुत ओपन था, ईस्ट साइड बहुत ओपन था, लेकिन ये बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद में ये इनका वास्तु एकदम उल्टा हो गया। अब उल्टा होने के कारण इसमें प्रॉब्लम्स आना तुरंत शुरू हो गई। तो इसको मैंने फिर नॉर्थ ईस्ट में, इनको एक बोरवेल की भी जरूरत थी, तो नॉर्थ ईस्ट में एक बोरवेल खुदवा दिया। वहां का जो पृथ्वी तत्व है वो कम हो गया, फैक्ट्री के कारण नेचुरल है कि पृथ्वी तत्व बढ़ गया है वहां का, बोरिंग के कारण उसका पृथ्वी तत्व कम हो गया। और साउथ वेस्ट में भी वेट बढ़ा दिया बाउंड्री वॉल के कारण भी, और कुछ पिरामिड भी इसमें हमने लगाए, तो उसके कारण फिर ये अपनी वापस पुरानी पोजीशन में जैसा था वैसा ये आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम डिस्कस करें अंडरग्राउंड वाटर। आप जैसा जानते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर, क्या पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम होती जा रही है। हमारे यहाँ इंडिया में भी कई जगहों पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं है लोगों को। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सेव वाटर, वाटर की बचत करें, पानी की बचत करें, वेस्ट ना करें। और ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, जो अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसको जरूर लगवाएं। जमीन के अंदर पानी रहेगा तभी आपको मिलेगा, पानी नहीं रहेगा तो दुनिया की ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो आपको
वाटर की अवेलेबिलिटी वहां पर करा सके। तो यदि मान लीजिए जमीन के नीचे पानी है, यदि किसी भी लैंड में अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसको पॉइंट देखना, ढूंढना कहाँ पर वाटर अवेलेबल है, और वहां वेल या ट्यूबवेल बनाकर उसको लेना। ये 2 स्टेप हैं इसमें। तो वाटर की अवेलेबिलिटी देखने के लिए वास्तु में कुछ कंसेप्ट हैं। हालांकि ये सारे कंसेप्ट हैं, इनके लिए ये जरूरी है कि ग्राउंड अपनी नेचुरल स्टेट में हो, उसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया गया हो, तभी एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ सिद्धांत है, कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें जनरली मिल जाते हैं। मैं उनको केवल यहाँ पर अभी आपको डिस्कस करता हूँ कि यदि कोई एरिया है जहाँ काले या लाल रंग की मिट्टी है, तो वहां पर जो पानी मिलेगा जमीन के नीचे वो मीठा पानी मिलेगा। काली या लाल रंग की मिट्टी है और वहां पर जो पानी मिलता है वो मीठा पानी आपको मिलेगा। पीले रंग का पत्थर यदि है कहीं, तो वहां भी जमीन के नीचे पानी होता है। अब पानी, पीले रंग का पत्थर तो एक बहुत बड़े एरिया में रहेगा, या मिट्टी है काले और लाल रंग की, ये भी एक बहुत बड़े एरिया में रहेगी। अब उसमें हमें कौन सी जगह पर अपना वेल खोदना है या ट्यूबवेल का खोदना है, वो हमें पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए फिर आप देखिए उसके ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हैं, जो क्रीपर्स हैं या घास है, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। यदि किसी जगह पर आपको ऐसे पेड़ मिले या ऐसे क्रीपर्स मिले या ग्रास वहां की ऐसी हो जिसके पत्ते चिकने हो, आप देखिए कभी ऑब्जर्व कीजिए, कुछ पत्ते होते हैं जो चिकने होते हैं और कुछ हैं जो ऊपर से चिकने नहीं होते हैं, उनमें कुछ रोए जैसे रहते हैं, ऊपर निकले रहते हैं। ठीक है, तो चिकने पत्ते वाला यदि कहीं पर मिलती हैं तो उस जगह पर पानी होता है। उसके नीचे आप वहां उस पॉइंट पर आप अपना वेल बनाएंगे, वेल खोदेंगे, तो वहां पर नीचे जाकर पानी मिल जाएगा। एक और कंसेप्ट है कि यदि कोई जमीन ऐसी है जिसमें नीचे, जिसमें घास नहीं है, बिना घास के, बिना कोई वृक्ष के, बिना कोई क्रीपर्स के कोई जमीन है, और उसमें किसी जगह पर घास आपको देखने मिल जाए, तो जहां पर वो घास है उसके नीचे पानी होता है, वहां पर आप कुआं खोद दीजिए, वहां पर आपको पानी मिल जाएगा। तो ये कुछ, ये घास वगैरह हमें कहीं भी मिल सकती है देखने के लिए। या एक और है इसमें साथ में कि यदि पूरी जगह में घास है लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह की आप देखिए, कभी ऑब्जर्व कीजिए, कुछ एक एरिया ऐसा होगा, एक स्थान ऐसा होगा जहां पर घास नहीं होगी या उसके पत्ते पीले रंग के होंगे, तो उस जगह पर खोदने से पानी मिलता है। तो ये तो हुआ उसका स्थान सिलेक्ट करने के लिए बात, जहां पर हमें कुआं खोदना है या अपना बोरवेल खोदना है। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिस पर मैंने काम भी किया है, वो है खोदने का मुहूर्त। जब भी हम अपनी जमीन में आप खोदने का काम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये देखना है, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, वास्तु पुरुष जो रोटेट होता है, एक साल में एक चक्कर लगाता है पूरा, उसके किसी भी नाजुक अंग पर चोट ना हो। उस समय उसकी पोजीशन वैसी ना हो कि उसका हार्ट पर, उसके पेट पर, उसकी आंख पर चोट हो जाए। ऐसा पॉइंट यदि आ रहा है तो हम थोड़ा सा डिले कर देंगे उसको। और मुहूर्त निकालने के और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं, तो जिनसे हम यदि उस मुहूर्त में वहां पर कुआं आप खोदते हैं तो निश्चित रूप से, यदि गलत पॉइंट पर भी आपने कुआं बना लिया है, कुआं खोद लिया है, तब भी यदि मुहूर्त सही है तो उसका उस जगह पर आपको पानी मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैंने जब शुरू में देखा तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मुहूर्त से क्या होगा, भाई नीचे पानी होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा।
फिर मैंने इसमें कुछ कंसेप्ट लगाया। एक कंसेप्ट मैं आपको भी बताता हूँ कि समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स कब आते हैं। ये सभी जानते हैं कि ये अमावस्या और पूर्णिमा के समय आते हैं। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा ये क्या है? ये भी मुहूर्त है। समुद्र में ज्वार भाटा जो आ रहा है वो भी मुहूर्त देख के आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन में या पर्टिकुलर टाइम में वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है, वो अट्रैक्ट होता है। तो आप यदि सही मुहूर्त पर कुआं खोदने का काम शुरू करेंगे तो वहां पर अंडरग्राउंड वाटर अट्रैक्ट होगा और कहीं ना कहीं से आपकी लिंक उस कुआं की और जो अंडरग्राउंड में जो वाटर का सोर्स है जहां भी है उसकी बन जाएगी और आपको वहां निश्चित रूप से उसमें पानी मिलेगा। तो ये मुहूर्त निकाल कर, हाँ इसमें मुहूर्त में एक बात और मैं बोलूंगा कि ये मुहूर्त का जो विज्ञान है ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मुहूर्त होता है। शादी का मुहूर्त अलग है। शादी के मुहूर्त में कुआं खोद दोगे तो वो पानी नहीं मिलेगा आपको। कुआं खोदने का जो मुहूर्त है उसी में कुआं खोदना शुरू करेंगे तभी पानी आपको मिलने वाला है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का मुहूर्त अलग होता है, उसके क्राइटेरिया अलग हैं। नींव खोदना शुरू कर रहे हैं आप, एक्सकेवेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसके क्राइटेरिया एकदम डिफरेंट है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं मुहूर्त भी उसी का होना जरूरी है, अदरवाइज ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करता हूँ। वास्तु में कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत बड़ा है। बिल्डिंग के एरिया से अधिकांश कैलकुलेशन होते हैं। तो एक चीज है ये एज ऑफ बिल्डिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं, निकालते हैं कि बिल्डिंग की एज कितना है या अभी इसकी एज है कि नहीं है, ब्रिज है या कोई और दूसरा स्ट्रक्चर है, तो उसकी एज हम लोग देखने का क्राइटेरिया केवल इतना है कि जो भी लोड उस पर आ रहा है वो उसको बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ना सेफ है कि नहीं है। तो उससे उसकी एज डिसाइड होती है। जब वो वीक हो जाए गैदरिंग एक्शन के कारण तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसका एज खत्म हो गया। लेकिन वास्तु में एज का एक अलग मतलब है। यहाँ पर एज से मतलब है कि वो बिल्डिंग आपको कितने समय तक अच्छा फल दे रही है, ये उसकी एज है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ हो सकता है बहुत अच्छी हो, उसकी एज पूरी होने के बाद भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो। एग्जाम्पल हम लें, कोई भी आदमी है, कोई भी मनुष्य है, तो उसकी एज एक अलग चीज है, ठीक है, और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग चीज है। दोनों अलग अलग, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। तो उसी ढंग से जैसे एक अच्छा बॉडी वाला आदमी की भी एज हो सकता है खत्म हो गई, कोई बीमारी उसको ऐसा हो गया, हार्ट अटैक आ गया और उसकी एज खत्म हो गई वहां पर। इसी ढंग से बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की एज एकदम अलग चीज है उसकी स्ट्रेंथ से। तो ये एज निकालने के लिए ये कुछ कैलकुलेशन है। इसमें सबसे पहले हम उसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए ये स्क्वायर इंच में एरिया निकलेगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ये एग्जांपल मैंने लिया है 11 फीट 5 इंच बाय 12 फीट 5 इंच, 11 फीट 5 इंच बाय 12 फीट 5 इंच का कोई बिल्डिंग है और इसका एरिया हुआ स्क्वायर इंच में 20413 स्क्वायर इंच। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करने में 163304 ये आ गया। ये जो फिगर आया इसको डिवाइड करेंगे फिर 60 से, इसको 60 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचे, जो रिमाइंडर बाकी रहता है 44, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये जो 44 है ये उस बिल्डिंग की एज है ईयर्स में। 44 ईयर्स उस बिल्डिंग की एज होगी और ये एज रहेगी बिल्डिंग मेड ऑफ मड, जो मिट्टी के मकान बनते हैं उनकी एज होगी ये 44 ईयर्स। इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग 44 ईयर्स तक उपयोग करने वाले को अच्छा शुभ फल या जो भी उसका फल है
वो देता रहेगा, उसके बाद ये वो फल देना बंद कर देगा। यदि सेम एरिया की बिल्डिंग लाइम और स्टोन से बनी है तो उसकी एज मड की बिल्डिंग से 10 टाइम्स ज्यादा होगी। ये जो सेम कैलकुलेशन है 44 इयर्स का मिट्टी की बिल्डिंग का, उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यदि यही बिल्डिंग लाइम और स्टोन से बनी हुई है। अब ये तो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हमने देख लिया, और अभी प्रैक्टिकली हम बात करें तो कहाँ कौन कैलकुलेशन इतना करता है। हमें क्या करना है, अपने लिए हम उसकी बात करें। कोई भी बिल्डिंग है यदि उसकी एज बढ़ाना है तब हमें एक कंसेप्ट है कि उसका जो रेनोवेशन है वो हम करते रहें, उसकी पेंटिंग करते रहें, ठीक है। कहीं क्रैक आ गए हैं उनको फिल कर दें तो उसकी एज बढ़ जाती है। कोई भी पुरानी बिल्डिंग है उसका, या ज्यादा पुरानी यदि हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अब ये हो सकता है इसकी एज पूरी हो गई हो, स्ट्रेंथ है मगर अभी उसमें, तो एक और बहुत अच्छा तरीका है कि उसका पूरा प्लास्टर निकाल के फिर से प्लास्टर कर दें, तो उसमें फिर से एनर्जी आ जाएगी। एज खत्म होने का मतलब है कि अब उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। तो यदि हमने फिर से उसका प्लास्टर कर दिया, फिर से पेंटिंग कर दी उसमें पूरा, तो उसमें फिर से एनर्जी आ जाती है और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अब लाइफ जब खत्म होगी बिल्डिंग की तब फिर क्या होगा, कैसे पता चलेगा? जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म होती है तो जो बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से अभी हमें बहुत अच्छा फल दे रही थी, सुख संपन्नता दे रही थी, वो ये सब देना बंद कर देगी। उसमें अब वो उसको खंडहर होना है, अब क्योंकि वो खत्म हो गया, अब तो डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया वो, ठीक है। अब उसको खंडहर बनेगा वो बिल्डिंग को। तो सबसे पहले क्या करेगा, उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। वो तो बाहर कैसे निकलेंगे, उनको परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। उनको उससे जो फायदे मिल रहे थे वो फायदे मिलना जब उसको बंद हो जाएंगे, वो परेशानियों में पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो धीरे 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 करके परेशान होके या तो वो उस बिल्डिंग को बेच देंगे या कहीं और चले जाएंगे और वो बिल्डिंग खाली हो जाएगी और धीरे धीरे खंडहर में बदल जाएगी। आप देखिए पुराने समय में कितने बड़े बड़े महल बने राजाओं के, उन्होंने खूब वास्तु दिखा के और उनको बनाया, लेकिन जब उनकी एज खत्म हो गई तो वो सारे के सारे खंडहर में बदल गए। तो ये एज, हम जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसमें मेरी सलाह है कि उसमें एनुअली उसका रिनोवेशन जो कुछ भी है, मेंटेनेंस, उसको हम कराते रहें, तो जिससे आपको उसके फायदे मिलते रहेंगे। अब एक और कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि जिसको हम किसी भी बिल्डिंग में जो इंटीरियर हम करते हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हैं, ये हाइट एंड वेट का। ये बिल्डिंग में ये जो ईशान वाला कॉर्नर है, ईशान वाला साइड है, ये हाइट भी इसकी कम होना चाहिए और इसका वेट भी कम होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा हाइट और वेट वाला जो जगह है वो नैऋत्य है, और क्रम से इसका क्रम बढ़ेगा। जैसे 1 जो लिखा है ईशान में, ये सबसे नीचे, फिर इसके ऊपर आएगा नॉर्थ और ईस्ट वाला जगह, इससे ऊपर होना चाहिए। वायव्य, ब्रह्मस्थान और आग्नेय, जहाँ ये 3 लिखा है, 3 नंबर है, ये उससे ऊपर है, और इस ढंग से ये 5 तक आकर सबसे ऊपर हो जाएगा। तो बिल्डिंग में जब हम अपना इंटीरियर भी सेट करते हैं तब भी हमें इसका ध्यान रखना है कि जो हैवी सामान है उसको नैऋत्य की तरफ रखें और जो हल्का सामान है उसको ईशान की तरफ रखें। बिल्डिंग का भी जब कभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें नैऋत्य यदि ऊंचा रखते हैं तो ऊंचा रखने के कारण उसका वेट भी अपने आप बढ़ जाता है, और ईशान को सबसे नीचे रखें तो उससे एनर्जी का फ्लो बिल्डिंग में एक अच्छा रहता है। नॉर्थ से जो आ रही है वो भी और ईस्ट से जो आ रही है वो भी। तो ये इसके साथ में ये अभी का मेरा जो वेबिनार था ये खत्म हुआ।
तो अभी कोई यदि क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। Thank you so much, Ajit sir, for this wonderful session. I hope everyone is benefited with today's interaction and discussion. So we would like to take some questions from participants. So if you have any question, you can drop it in the chat box. स्लाइड्स। Hello. जी Sir, there are some question in chat box. You can with the chat box also. कहाँ है चलो कल मिस्टर अजीत सिंह स्पीकर ऑफ द मीटिंग you have shared 21 years experience with us. You get benefited. Thank Mr. Sunil K. Somani, the Vice Chancellor. Hello. Sir, there is one question. What is the impact of extended northwest and its remedies? नॉर्थ वेस्ट यदि एक्सटेंड हो गया है तब वहां पर वायु का अधिकता हो जाएगी और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो अनावश्यक रूप से दौड़ भाग करते रहेंगे। उनको कोई ना कोई काम या कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी रहेगी जो एक बार जाने में हो रहा है, वो हो सकता है उसके लिए उनको बार बार जाना पड़ रहा है, या किसी बिना मतलब की प्रॉब्लम में वो ऐसा फंस रहे हैं कि जिसके कारण उनको दौड़ भाग करना पड़ रही है। तो या एक और हो सकता है, इसके साथ में एक्चुअल में पूरा इफेक्ट बताने के लिए और बाकी चीजों का कॉम्बिनेशन भी देखना होता है, लेकिन केवल नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा यदि बढ़ती है तो उससे धन का भी नुकसान हो सकता है, पैसा भी अनावश्यक बेकार फालतू में खर्च हो जाता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसमें जो एक रेक्टेंगल बनाए हम नॉर्थ वेस्ट बढ़ने में, साथ में थोड़ा सा ये बताएंगे आप कि आपका किस ढंग से बढ़ गया है नॉर्थ वेस्ट। मतलब मैंने 2-3 तरीके बताए थे पहले, उनके सबके अलग अलग इफेक्ट हैं। तो यदि ईशान को कम करके और नॉर्थ वेस्ट बढ़ रहा है तिरछा लाइन से, एंगल के कारण यदि है, वायव्य का एंगल यदि 90 डिग्री से कम है और वो बढ़ रहा है, या एक छोटा सा पार्ट उसका बाहर निकल गया है, तो दोनों के अलग, यदि छोटा सा पार्ट वहां से बाहर निकला हुआ है तो वहां पर आप एक तांबे का तार लेके एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन में तांबे का तार लगा दीजिए वहां पर जमीन के नीचे, तो उससे वो उतना हिस्सा आपका अलग हो जाएगा, उसका इफेक्ट फिर नहीं आएगा। Sir, one more question from Shikha Agrawal. Sir, this concept is also applicable to flats also? हाँ जी, फ्लैट में भी एप्लीकेबल है, मगर उसमें थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। उसमें मेन डोर का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि जनरली फ्लैट में मेन डोर अंदर की तरफ ओपन होता है। अंदर मतलब बिल्डिंग, जो आपका पूरा बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी है, उसके अंदर ओपन होगा, और ओपन एरिया आपका पीछे साइड रहेगा, विंडोज जो है। तो वो उसका एनालिसिस जब हम करते हैं तो थोड़ा सा अलग ढंग से होता है, लेकिन एप्लीकेबल वो फ्लैट में भी है। Okay, sir. There is one more question. अगर साउथ में डोर हो तो इसकी रेमेडी क्या है? देखिए, साउथ का डोर है, साउथ का डोर है तो ये खराब हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, उस बिल्डिंग में रहने वालों को नुकसान होता हो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए हम जो चारों साइड है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, इनको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो 8 पार्ट के में डोर होने का अलग अलग इफेक्ट है। तो साउथ में भी 2 जगह ऐसी आती हैं, मतलब 1/4 लेंथ ऐसी रहेगी जिसमें यदि डोर है तो वो अच्छा फल देने वाला है। तो पहला चीज तो ये है कि हम ये ना सोचें कि साउथ में यदि डोर है तो वो नुकसान दे रहा है या खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो सही जगह पर है तो अच्छा भी हो सकता है। दूसरा, यदि मान लीजिए
खराब फल दे रहा है, यदि आपको कुछ मिल रहा है उसका इफेक्ट, और ये पक्का है कि ये डोर के कारण मिल रहा है, तब फिर उसका रेमेडी है। हालांकि वो थोड़ा सा संभल के करना होती है। आप ऐसा कीजिए, स्वास्तिक सिंदूर से दरवाजे के दोनों तरफ या एक ऊपर भी 3 स्वास्तिक बना दीजिए सही सही शेप में, तो उससे आपका बहुत हद तक इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं कि साउथ साइड में रेड कलर करें। आपकी जो बिल्डिंग है उसको, उस साइड की जो वॉल है उसमें रेड कलर का कोई भी शेड आप ले सकते हैं, और यदि 2 कलर है तो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं, तो इससे साउथ का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। Thank you so much, sir. Sir, one more question. What should be the right direction of temple in home? टेम्पल इन होम, ये देखिए टेम्पल का जो वास्तु है, जो होम का, घरों के अंदर जो टेम्पल हम रखते हैं, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। इसके लिए एक अलग से वेबिनार करना होगा, और यहाँ इस ढंग से बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो मूर्ति है, आप किन की मूर्ति रख रहे हैं, अलग अलग देवी देवताओं के हिसाब से वो अलग अलग पोजीशन आती है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर के अंदर, घर का जो टेम्पल होता है, मंदिर होता है, उसमें मूर्ति की साइज 11 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 11 इंच से छोटी मूर्ति रखें, और जो मंदिर है उसमें कलश ना हो, बिना कलश का। जैसे कई बार बहुत अच्छा डिजाइन बनाने के चक्कर में लोग घर के मंदिर में भी शिखर बना दिया और कलश बना दिया, जैसा बाहर के मंदिर में होता है। तो बाहर जो बड़ा मंदिर बनता है, मंदिर की जो बिल्डिंग होती है, उसका कंसेप्ट और वास्तु अलग है, और घर के अंदर के कंसेप्ट अलग हैं। घर में हम एक लिमिट से ज्यादा चीजें नहीं करते हैं। तो ये 2 चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। और मूर्ति के हिसाब से आपका घर ईशान में भी, मंदिर ईशान के कोने में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, दोनों तीनों जगह पर, या डिपेंड करेगा आप कौन से देवता की, कौन से भगवान का कर रहे हैं, तो वो साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बताना ऐसा बिना देखे थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। Okay, thank you so much, sir. Sir, one more question from Aditya Pathak. If stairs constructed on a north side and a northwest के mid में, then what are the preventive measures to be taken? अगर सीढ़ियां नॉर्थ साइड में है तो क्या करना नॉर्थ चाहिए? वेस्ट में देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, मतलब नॉर्थ वेस्ट की साइड में भी आपका कुछ पार्ट है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी बिल्डिंग का कुछ पार्ट नॉर्थ वेस्ट में भी है, तो वहां पर बहुत ज्यादा थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है इसका। हाँ, आप वहां पर जो स्टेयर है उसके चारों तरफ 4 पिरामिड लगा दीजिए, तो पिरामिड लगाने से उसका इफेक्ट यदि थोड़ा बहुत कुछ आ रहा होगा। क्या है, नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण जो है वहां भी स्टेयर हम बना लेते हैं, आग्नेय में भी बना लेते हैं, ये बहुत ज्यादा खराब इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये किस द्वार दिशा उत्तम चाहिए जी, ठीक है, तो आप वहां पर वायव्य का पिरामिड लगा के उसको हम कब कर सकते हैं। पिरामिड मार्केट में अवेलेबल है, डायमेंशन बस चेक कर लीजिए उसका। सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यशदीप बानी. यशदीप, यू कैन आस्क. ओके, ही लोवर्स हिज हैंड, नो इशू. सर, मेरा एक क्वेश्चन था, पर्सनल क्वेश्चन. सर, इस सीढ़ियों जो डायरेक्शन था सीढ़ियों का, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कुछ फर्क पड़ता है सर क्या? वैसे क्लॉकवाइज होना चाहिए। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यदि एंटी क्लॉकवाइज भी बन गया है तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान होता हो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। तो अगर इस पे कोशिश हम करते हैं क्लॉकवाइज बन जाए, लेकिन यदि नहीं भी बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ गई है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर. Suryakan sir, many of the attendees have raised their hand. I would like to request the attendees kindly drop down your questions in the chat box, or if Suryakan sir, if you allow them to speak, they can also ask the questions over here.
Okay, ma'am, no problem. There are lots of questions, ma'am. So we can ask them to drop them in chat box and we can reply through mail also. Yes, sir, definitely. Okay, sir. ये मेल एड्रेस और फोन नंबर मैंने लिखा है इसमें स्क्रीन पर। Uh, यदि ये मेल है, participant can ask the question through mail also, or there is a contact number also. हाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दिया है, लेकिन किसी भी कोई भी वास्तु देखने के लिए, चेक करने के लिए उसका मैप होना जरूरी है ना। और यदि कोई ऐसा छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है, एक कोई फैक्टर पूछना है, तो वो मैं आंसर कर सकता हूँ उसको फोन पर। Okay, thank you so much, sir. Okay, sir. Thank you so much for your responses. For vote of thanks, I would like to invite Dr. Ramakant Agrawal, Head of the Department Civil Engineering. Dr. Ramakant Agrawal, sir, please. Hello, Ramakant sir, you can unmute yourself. One more thing for participants, I'm going to drop the link for feedback. You can give the feedback and you will get the certificate through website or you will get certificate through mail. Please fill the feedback ASAP. As soon as possible, you can fill the feedback form. Megha ma'am? I think. Yes, sir. I'll go for. Okay. I want to thank Mr. Ajit Kumar Jain, speaker of this webinar, for his valuable content on Vastu Shastra. We acknowledge your effort that you have been share your 21 years experience with us, and surely all the participants will get benefited from that. I want to thank Professor Dr. Sunil K. Somani, the Vice Chancellor, Medicaps University, for their enduring support. We are much grateful to have a supporting leader like you, sir. Thank you for being our leader. I also thank to our Dean Engineering, Dr. D.K. Panda, for encouraging us, and Dr. Pradyumna Yadav, the Registrar, Medicaps University, for leading the supporting team successfully. I also want to thank Ms. Megharima Datta and Mr. Alok Rarotia for taking initiative steps for conducting this wonderful event and coordinating it. And I also want to thank Mr. Suryakant Soni, Ms. Amrita Mantri, and Mr. Gajendra Singh, and the whole backup supporting team. And our Medicaps family for their direct and indirect contribution, and especially all over the participants from all over the globe for their patient listening and presence. Hope we all keep gathering together for better causes and will be joined